Namaskar dear students, in this second lecture of the Browning version. Last time we discussed, Taplow said, well, I am not sure sir, that would be true of the ordinary masters. Alright, the just student dare not to give a chap a remove after his taking extra work. Taplow said, I am not sure about that this thing will happen as Mr. Croker Harris is not such a teacher who would show favor like other ordinary teachers for doing extra work. He is not going to do any favor as far as announcing the result or sharing the result of Taplow to Taplow or doing something favor to him. But those sort of rules don't apply to the Mr. Croker Harris. He, instead of saying Mr. Croker Harris, he just shortened his name to just the Croc. I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? Taplow says that he asked Mr. Croker Harris the previous day if Mr. Croker Harris had given him the promotion, and do you know what he said, sir? He shared the same thing with Frank and told him that if he knew what Mr. Croker Harris had said. Frank says no. What? Frank कहता है नहीं, मुझे नहीं मालूम what Mr. Croker Harris would have said. Taplow, imitating a very gentle, rather throaty voice, my dear Taplow, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Do you know, sir, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work, and I mean the man's hardly human. Taplow मिस्टर क्रोकर हैरिस की मोटी आवाज की नकल करते हुए, विनम्र आवाज और मोटी आवाज की नकल करते हुए कहता है, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व. मैंने तुम्हें वही दिया है ठीक जितना तुम डिजर्व करते हो, जिसके तुम काबिल हो. नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, निश्चित रूप से न कम और न ज्यादा. डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन. और क्या आप जानते हो सर, टैप्लो ये कहता है फ्रैंक को कि क्या आप जानते हो सर, मुझे लगता है ही मस्ट हैव मार्क्ड मी डाउन, उसने मुझे अवश्य ही कम अंक दिए होंगे, रादर देन अब बजाय ज्यादा के, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, फॉर डूइंग दिस वर्क, जो एक्स्ट्रा वर्क मुझे दिया है इस काम को करने के लिए उसने मुझे ज्यादा के बजाय कम मार्क्स दिए होंगे, मुझे लगता है ऐसा. आई मीन द मैन इज हार्डली ह्यूमन, मेरा अभिप्राय यह है कि वो शायद ही इंसान है. द मैन इज हार्डली ह्यूमन, मिस्टर क्रोकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन, शायद ही इंसान है. मीन्स ए ह्यूमन बीइंग इज नोन फॉर हिज इमोशंस, फीलिंग्स एंड ह्यूमैनिटी, फॉर सॉफ्ट हार्ट, बट ही इज नॉट श्योर. He breaks off quickly, वह हंसने लग जाता है. Sorry sir, have I gone too far? क्या मैं ज्यादा ही आगे चला गया as far as caring about Mr. Croker Harris? Frank, yes, much too far. Frank says, हाँ, निश्चित रूप से तुम ज्यादा लिमिट क्रॉस कर गए, ज्यादा आगे चले गए. You have crossed your limit. Taplow, sorry sir, I got carried away. Taplow begs his pardon, saying that he got distracted, कि वह बहक गया था. Frank कहता है, it is evident that you got distracted. You spoke too much of Croker Harris. He picks up a newspaper and opens it, and meanwhile Frank एक न्यूज़पेपर को उठाता है और इसे खोलता है. Hey Taplow, yes sir.
टेप्लो को उसके नाम से एड्रेस करता है और टेप्लो इसका आंसर करता है यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। फ्रैंक आस्क्ड टेप्लो व्हाट क्रॉकर हैरिस हैड सेड टू हिम। उससे पूछता है कि क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें क्या कहा था, जरा इसको रिपीट करना, क्या आप करोगे। He requested Taplow to repeat what Croker Harris had said. Taplow imitating again, फिर से उस अपने टीचर की आवाज की नकल करता है and says that my dear Taplow, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. My dear Taplow, I have given you exactly what you deserve. मेरे प्रिय टेप्लो, मैंने तुम्हें ठीक वही दिया है जिसके तुम काबिल हो, न कम और निश्चित रूप से न ज्यादा। Frank looking severe, not in the least like him. Frank now become severe, become hard in his voice and his stance towards Taplow. थोड़ा सख्त होते हुए कहता है not in the least like him. तुम उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। You are not speaking like Mr. Croker Harris. Read your nice Aeschylus and be quiet. अपनी Aeschylus जो है उसको पढ़ो and be quiet. Aeschylus जो राइटर है उसको पढ़ो and be quiet और चुप रहो। Taplow with dislike Aeschylus means should I read Aeschylus? Taplow कहता है मुझे Aeschylus पढ़नी चाहिए। Frank, look, what time did Mr. Croker Harris tell you to be here? देखो, Mr. Croker Harris ने क्या समय दिया था तुम्हें यहाँ आने के लिए। Taplow, 6:30 sir. Taplow answers him saying that it is 6:30. It was 6:30 that he asked me to be here. Frank, well, he isn't. He is 10 minutes late. Frank कहता है खैर वैसे वो 10 मिनट लेट है। Why don't you cut? Why don't you play truant? तुम भाग क्यों नहीं जाते? Why don't you play truant? You could still play golf before lockup. तुम अब भी स्टेडियम क्लोज होने से पहले गोल्फ खेल सकते हो। Taplow really shocked. Oh no. Taplow really shocked. Oh no, I couldn't cut. कि मैं I couldn't play truant of his class. मैं उसकी क्लास से बंक नहीं कर सकता, उससे बंक नहीं मार सकता। Cut the crock. मैं क्रॉक की क्लास को छोड़ के चला जाऊं। Mr. Croker Harris, I mean, I shouldn't think it's ever been done in the whole time he's been here. मुझे सोचना नहीं चाहिए that ऐसा किया गया है मेरे पूरे समय में जब से वो यहाँ पे है। शायद किसी ने ऐसा नहीं किया है। God knows what would happen if I did. भगवान ही जानता है क्या होगा यदि मैंने ऐसा कर दिया तो। He would probably follow me home or something. वह संभवतया मेरे घर आ जाएंगे पीछे पीछे और समथिंग या कुछ ऐसा ही करेंगे। So I can't cut the crock. Frank, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the form you all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? Frank says that कि वो कहता है I must admit, मुझे ये चीज स्वीकारनी होगी, I envy the effect, I envy him the effect he seems to have on you boys, कि वो जेलस है, वो जेलसी करता है जिस तरह का प्रभाव क्रोकर हैरिस का लड़कों के ऊपर है, उस प्रभाव से वो जेलसी करता है। You all seem scared to death of him, तुम उससे बहुत डरते हो। Means you, he says that all the boys of the form of the class seem scared to death of him, are very much afraid of Croker Harris. वे Croker Harris से काफी डरते हैं।
What does he do? वह क्या करता है? Beat you all or something? क्या आप सबको पीटता है वो या कुछ ऐसा करता है? Taplo, good lord, no, he is not a sadist like one or two of the others. Taplo says, good lord, भगवान, हे भगवान, no, ऐसा नहीं है. He is not a sadist. वह पर पीड़क नहीं है. Sadist, a person who derives pleasure or joy out of giving pain to others. दूसरों को जो पेन देकर जिसे मजा आता हो, ऐसा व्यक्ति वो नहीं है. Like one or two of the others, जिस तरह से एक दो हमारे स्कूल में हैं. Frank, I beg your pardon. मैंने सुना नहीं. This phrase is used to ask the speaker to repeat what he had just said. Frank, I beg your pardon. मुझे सुनाई नहीं पड़ा तुमने क्या कहा. Taplo, a sadist sir, is someone who gets pleasure out of giving pain. एक ऐसा व्यक्ति से मजा आता है दूसरों को दर्द देकर, दुख देकर. Frank indeed, but I think you went on to say that some other masters. वास्तव में ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने तो ये तक बोल दिया था that some other masters are sadist here in our school. मीन्स कुछ एक मास्टर हमारे स्कूल में भी सैडिस्ट है. Taplo, well of course they are sir. I won't mention names, but you know them as well as I do. निश्चित रूप से हैं सर, निश्चित रूप से there are some teachers who are sadist. I won't mention names, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा. But you know them as well as I do. लेकिन आपको भी उतनी अच्छी तरह से मालूम जितना मुझे मालूम है. Of course I know most masters think we boys don't understand a thing, but sir you are different. निश्चित रूप से मैं बहुत से टीचर्स को जानता हूं जो ये सोचते हैं कि हम लड़कों को कुछ समझ नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आता. बट सर यू आर डिफरेंट. लेकिन सर आप वैसे टीचर नहीं हो. यू आर यंग, आप युवा हो अभी. वेल कंपैरेटिवली, वैसे भी तुलनात्मक रूप से. एनीवे, एंड यू आर साइंस, आप साइंस की टीचर हो. यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज. आपको मालूम होगा सैडिज्म क्या होता है. What sadism is? Frank, apropos, good lord, what are our schools coming to? Means how the school system has downgraded what law they have, they are touching nowadays. Means कितना नीचे आ गए हमारे स्कूल आजकल, सिस्टम कितना गिर गया उनमें. Taplo, anyway, the croak isn't a sadist. That's what I'm saying. Croak sadist नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ. He wouldn't be so frightening if he were. और वो इतना यदि वो sadist हो तो इतना डरावना नहीं हो. Then if he were a sadist, we would not have been so afraid of him. हमें उससे इतना डर नहीं लगता. Because at least it would show he had some feelings. कम से कम इस चीज से ये तो पता चल जाता that he had some feelings, कि उसमें अंदर कुछ भावनाएं हैं, उसके अंदर कुछ भावनाएं हैं. But he hasn't, लेकिन उसके अंदर तो भावना ही नहीं है. He hasn't any feeling. He's all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him, and he's all shriveled up. और वो अंदर से सिकड़ा हुआ है, अंदर से सिकड़ा हुआ है. shrunk from inside, he is shrunk from inside like a nut. जिस तरह से नट होता है, गिरी होती है, अखरोट वगैरह की जो गिरी होती है उसकी तरह. and he seems to hate people
और ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पसंद नहीं करता है जब लोग उसे पसंद करते हैं। मीन्स लोगों के द्वारा उसको पसंद किया जाना, ये चीज उसे पसंद नहीं है। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। और ये कितनी मजेदार बात है सर, मुझे नहीं मालूम, कोई अन्य टीचर मुझे नहीं मालूम जिसको दूसरों के द्वारा पसंद किया जाना पसंद न हो। Frank, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. और मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मालूम, मैं नहीं जानता ऐसा लड़के को जो इस समय का फायदा न उठाए अपने उद्देश्य के लिए। जब टीचर के बुलाने पर टीचर न आ रहा हो, टीचर ने टाइम दिया हो और एंड द टीचर इज लेट एंड द बॉय हु हैज बीन गिवन दिस टास्क will wait for the teacher, wouldn't cut that teacher, उस टीचर को मीन्स उस कार्य को छोड़कर अपना जाए नहीं वहां से, अपना काम नहीं करे यहाँ से, अपना मीन्स फायदा नहीं उठाए इस चीज का, प्ले ट्रॉन्ट नहीं करे। टेप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। हाँ ये स्वाभाविक है सर। इफ इट वुड नॉट हैव बीन मिस्टर क्रोकर हैरिस, यदि क्रोकर हैरिस नहीं हुआ होता, ये टीचर क्रोकर हैरिस नहीं हुआ था जिसने मुझे वर्क दिया, तो मैं ऐसा करता, ये स्वाभाविक है। फ्रैंक, मिस्टर क्रोकर हैरिस, पूरा नाम बोलो, मिस्टर क्रोकर हैरिस। टेप्लो, मिस्टर क्रोकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, I can't help it, and sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. Teplo says, Mr. Croker Harris. Complete name बोल देता है वो in respect to that teacher, his teacher. The funny thing is that, और सबसे मजेदार चीज तो ये है, in spite of everything, हर चीज के बावजूद भी आई डू रादर लाइक हिम, मुझे वो टीचर ज्यादा ही पसंद है। मीन्स आई लाइक मिस्टर क्रोकर हैरिस मच, आई कांट हेल्प इट, और मैं रह नहीं सकता, आई कांट हेल्प लाइकिंग हिम, मैं उसे है पसंद किए बगैर रह नहीं सकता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट दैट आई लाइक हिम एंड दैट सीम्स टू shrivel हिम अप इवन मोर। और कभी कभी मुझे लगता है कि वह इस चीज को देख लेता है दैट आई लाइक हिम, और तब ऐसा प्रतीत होता है वह अपने आप को और ज्यादा श्रिंक कर लेता, सिकोड़ लेता है। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग, मुझे पूरा विश्वास हो गया है, विश्वास है कि तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। यू आर एग्जैजरेटिंग, यू आर स्पीकिंग हाईली ऑफ योर टीचर। Teplo, no sir, I'm not. Informed the other day he made one of his classical jokes. Of course nobody laughed because nobody understood it. निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। Inform means in class the other day, एक दिन उसने क्लास में he made one of his classical jokes. He cracked his classical jokes. उसने अपना एक पुराना जोक सुनाया. Of course nobody laughed because nobody understood it. निश्चित रूप से कोई हंसा नहीं इस जोक पर, as nobody could understand it, कोई समझ में नहीं, कोई इस जोक को समझ नहीं सका, myself included. And Teplo admits that he himself could not understand that joke. Still, I knew he had meant it as funny. Still, Teplo knew that the teacher had cracked the joke to create fun. So Teplo admits that he laughed. इसलिए वो हंसने लगा. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. And he laughed for two reasons. One, out of ordinary common politeness, एक विनम्रता होती है टीचर के प्रति, साधारणता, उसकी वजह से. And second thing is that he was feeling sorry for Croker Harris who had made a poor joke, जिसने इतना घटिया जोक सुनाया था. उस वजह से भी उस पे मीन्स सहानुभूति दिखाते, उस पे दया दिखाते हुए उसने हंस दिया. नाउ आई कांट रिमेम्बर व्हाट द जोक वाज, और अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो जोक क्या था.
बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मान लो कि सर मैंने द जोक दैट क्रॉकर हैरिस हैड मेड इन द क्लास आई हैव क्रैक्ड बिफोर यू, मैंने आपके सामने सुना दिया, नाउ यू लाफ, अब आप हंसो। फ्रैंक लाफ्स, और फ्रैंक हंसने लग जाता है। फ्रैंक हंसने लग जाता है। Taplo, in a gentle, throaty voice, Taplo, you laughed at my little joke. I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them, so that the two can share your pleasure. Taplo आगे कहता है, नी नमर और विनम्र और मोटी आवाज में, imitating Mr. Croker Harris, Taplo, you laughed at my little joke. Taplo, तुम मेरे छोटे से जोक पर हंसे। I noticed, मैंने देख लिया है। You laughed at my little joke. I must confess that, मुझे ये चीज स्वीकारनी होगी, एडमिट करनी होगी कि मैं खुश हूं। At the advance your Latin has made, जो लैटिन भाषा तुमने सीख ली है उससे मैं खुश हूं। Since you so readily have understood what the rest of the form did not, क्योंकि तुमने वो लैटिन में जो मैंने जोक सुनाया वो इतना जल्दी से समझ में आ गया जो बाकी क्लास को समझ नहीं आया। आपको इतना जल्दी से समझ में आ गया जो बाकी क्लास को बिल्कुल समझ नहीं आया। परहैप्स, शायद, नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, अब ये पर्याप्त अच्छा होगा कि तुम इस जोक को रेस्ट ऑफ द क्लास को सुनाओ, so that the two can share your pleasure, ताकि वे भी तुम्हारे आनंद को शेयर कर सकें। The door upright is pushed open and Millie Croker Harris enters. इसी बीच जो राइट साइड का दरवाजा वो खुलता है, मिली क्रॉकर हैरिस उससे अंदर प्रवेश करती है। She is a thin woman in her late 30s, वह एक पतली औरत है, अपनी 30 की एज पड़ाव में है, 30s के पड़ाव में है। Rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives, ज्यादा बेहतर कपड़े उसने डाल रखे हैं, आमतौर पर जो स्कूल टीचर्स की जो पत्नियां होती हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर कपड़े उसने डाल रखे हैं। She is wearing a cape, उसने एक केप पहन रखा है, एक ओवरकोट जो होता है वो पहन रखा है। And carries a shopping basket, उसने एक शॉपिंग बास्केट भी ली हुई है, लिए हुए वो। She closes the door and then stands by the screen watching, दरवाजा बंद कर देती है आने के बाद और फिर stands by the screen, और स्क्रीन के साथ लग के खड़ी हो जाती है टैप्लो और फ्रैंक को देखते हुए। It's a few seconds before they notice her, और उसे कुछ क्षण हो जाते हैं वहां खड़े हुए जिससे पहले कि फ्रैंक एंड टैप्लो की नजर उस पर पड़ती, उन्हें मालूम पड़ता है that Millie Croker Harris has come. Frank, come along. Taplo moves slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good job to yourself. Frank कहता है, come along. अरे सुनाओ Taplo, don't be so selfish. Move slowly above the desk. Desk की तरफ जाते हुए कहता है, don't be so selfish. इतने स्वार्थी मत बनो कि तुम इतने बढ़िया जोक को अपने पास ही रखो। Tell the others, दूसरों को सुनाओ। He breaks off suddenly, noticing Millie. और वो हंसने लग जाता है अचानक मिली को देखकर। ओ लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. फ्रैंक है वो जल्दी से मुड़ता है और उसे काफी राहत महसूस होती है मिली को देखकर। फ्रैंक says, oh hello, कैसे हो? Millie, without expression, hello. She comes down to the sideboard and puts her basket on it. वह साइडबोर्ड की तरफ आती है और अपनी बास्केट इसके ऊपर रख देती है, शॉपिंग बास्केट। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, टैप्लो फ्रैंक के बाईं ओर जाता है, विस्परिंग फ्रेंटिकली, और बुदबुदा रहा है जोर जोर से, मींस पागलों की तरह फुसफुसा रहा है। डू यू थिंक शी हर्ड, क्या आपको लगता है कि इसने सुन लिया है? मिली क्रॉकर हैरिस ने हमारी बात सुन ली है। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, अपना सिर हिलाता है।
सांत्वना देते हुए। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द होल्स्टन। आई थिंक शी डिड, कहता है मुझे लगता है इसने सुन लिया है। मिली इसी बीच अपने केप को, ओवरकोट को उतारती है और इसे होल स्टैंड के ऊपर टांग देती है। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, क्योंकि यह कुछ समय से यहाँ पर खड़ी हुई थी। टेप्लो, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माय रिमूव। टेप्लो कहता है इफ मिली क्रोकर हैरिस ने यदि मेरी बात सुन ली है, माई इमिटेटिंग मिस्टर क्रोकर हैरिस, देयर गोज माय रिमूव, तो मेरी प्रमोशन तो गई, मेरा पास होना गया। फ्रैंक, नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो। ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस, वह अंगीठी की तरफ जाता है। मिली टू टेप्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टेप्लो को कहती है मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। टेप्लो, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, यस यस, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, टेबल की बाईं ओर जाते हुए कहता है हाँ। मिली, ही इज एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, वह बर्सर के वहां गया हुआ है, एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, और उसे वहां पे कुछ समय लग सकता है। इफ आई वर यू आई वुड गो, यदि मैं तुम्हारे स्थान पे हूं तो मैं तो चली जाऊं, मैं नहीं रहूं यहाँ पे। टेप्लो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। टेप्लो ने डाउटफुली, थोड़ा संदेहपूर्वक कहा कि मिस्टर क्रोकर हैरिस ने मुझे विशेष रूप से कहा था आने के लिए। मिली, वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर a quarter of an hour and come back। मिली कहती व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर a quarter of an hour, तुम 1/4 घंटे के लिए, 1/4 of an hour के लिए क्यों नहीं चले जाते हैं, मीन्स अबाउट 15 मिनट्स के लिए चले जाओ कहीं, एंड कम बैक, फिर वापस आ जाना। व्हेन मिस्टर क्रोकर हैरिस इज नॉट देयर, शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, वह बास्केट से कुछ चीजों को निकालती है, अनपैक्स करती है। टेप्लो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, टेप्लो कहता है मान लो वो सर मेरे से पहले यहाँ पर आ गए तो, बिफोर माई रिटर्निंग हियर। मिली, स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम, मुस्कुराते हुए कहती है मैं ये ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी, दैट आई हैड सेंट यू। शी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, बास्केट से एक पर्ची निकालती है, प्रेस्क्रिप्शन निकालती है, जिसमें डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। आई टेल यू व्हाट, मैं बता दे तुम्हें क्या करना है। यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, तुम अपने टीचर के लिए काम कर सकते हो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, तुम ये प्रेस्क्रिप्शन दवाई विक्रेता के पास लेकर जाना, एंड गेट इट मेड अप, और इसमें जो दवाइयां लिखी हैं वो ले आना, उन्हें खरीद लेना। टेप्लो, ऑल राइट मिसेस क्रोकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अपराइट। टेप्लो कहता है ठीक है श्रीमती क्रोकर हैरिस, और वह चला जाता है दाईं ओर दरवाजे की तरफ। एंड विद दिस द प्ले इज ओवर हियर, द प्ले गेट्स ओवर हियर। सो स्टूडेंट्स, आपको इस सेकंड लेक्चर को फर्स्ट लेक्चर के साथ मिला के देखना है। इससे आपका जो चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद मैं जो नोट्स डाल रहा हूँ वो अपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं रिगार्डिंग देयर क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, बाय बाय।